اور وہاں پورے اسٹیٹ کے لیے ورلڈ سیشن سے میں الون آبزرور ہوں. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو ہم اپنے بچوں کو تو اس کے آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اسکالرشپ ایگزام سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اس کا حل نکالیں. آپ سے میرے اس وقت مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ 5th A اور 5th B باقی کلاسز سے ہم بعد میں بات کریں گے. آج ہم نے ان 2 کلاسز کے لیے رکھا تھا. ہر بچہ اسکالرشپ میں رجسٹریشن کروائے. ہر بچہ کتاب ان کو دی جاتی ہے, سارا گائیڈنس یہاں سے دیا جاتا ہے. آپ کو صرف اس کو جو اساتذہ کی ہدایتیں ہیں اس پر عمل کروانا ہے. اور یہاں سے جو شروعات اس کی ہوگی تو 8ویں میں ایک اور اسکالرشپ ایگزام ہونا ہے. اور اس سال ہمارے یہاں 8ویں کی اسکالرشپ ایگزام میں ایک بچی کو اسکالرشپ ملی ہے. جو بچے محنت کر رہے ہیں سنسیئرلی ان کو اس کا پھل مل رہا ہے. اور ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے ابھی ڈگری کالجز کے لیے بھی انٹرنس آ گئے ہیں. ابھی تک پروفیشنل کے لیے تھے, اب ڈگری کالج کے لیے بھی انٹرنس آ گئے ہیں. تو ہر بچے کو اسکالرشپ ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے کوئی میرٹ سے لوگ نہیں آتے. ایک ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. پہلے تو یہ ڈر اور خوف نکال دیجیے. ہر بچہ اپیئر ہو سکتا ہے اور اچھا پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ ان کا جو حساب ہے ان کی ذہنی استعداد کے ہی حساب سے. حساب بنانے والے اتنے بھی بیوقوف نہیں ہوتے, ان کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. بات یہ ہے صرف کہ ہم وہ جو ابھی ہو رہا ہوگا کتنا 8 نمبر کا لے رہے ہو, کیسے کتنے کا لے رہے ہو, ہم بہت لمیٹڈ سوچنے کے عادی ہو گئے. اور ایک بات میں بہت ذمہ داری سے کہوں گی کہ ہمارا پہلا پیغام جو اقرا تھا, دنیا کا کوئی بھی پروفیشنل کورس ہوگا کسی بھی فیلڈ کا تو وہ اس اقرا کا حصہ ہے. ہم نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا, اس کو ہم نے پروپیگیٹ نہیں کیا. ہم سوچ رہے ہیں 10ویں کر لیں گے 12ویں کر لیں گے, ایزیسٹ وے. آپ یقین مانیں بیچ میں ہماری ایک لا فرم سے ملاقات ہوئی ہے ایک سوشل کاز کے سلسلے میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھوٹے موٹے معاملوں میں یا غیر ضروری طور پر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بالخصوص خواتین, تو ہم ان کو لیگل ایڈ پہنچا سکیں. تو اس سلسلے میں جس لا فرم سے ہماری بات ہوئی وہاں کے جو لائر تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی بلڈنگ کے نیچے جو ایریا خالی ہوتا ہے پارکنگ کا, وہاں کچھ انہوں نے دیکھا بچے سوتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن ان کو پوچھا کہ کون ہے کیا ہے, تو یہ معلوم ہوا کہ بھیونڈی کے دور دراز کے جو گاؤں میں بہت چھوٹے آدیواسی لوگ اور اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ بچے یہاں مزدوری کرتے ہیں اور یہ مزدوری سے وہ اسکولوں کی فیس بھر کے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کو کتنا آرام پسند بنا دیا ہے. علم کی تلاش میں جو صعوبتیں برداشت ہمارے اگلے لوگوں نے کی تھی اس کا تو ہم اجر اشر بھی نہیں پورا کر رہے ہیں. مسجد میں مسجد نبوی جو ہے سب سے پہلی مثال ہے, وہی پارلیمنٹ بھی تھی, وہی یونیورسٹی بھی تھی. اہل صفہ جو کہا جاتا تھا لوگ پڑھتے تھے وہاں پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ وہاں آئے اور 2 گروپ میں لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف لوگ ذکر کر رہے تھے اور دوسری طرف کچھ پڑھ رہے تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف پڑھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور ہمارے پاس علم و حکمت کا سب سے بڑا خزانہ قرآن حکیم ہے اور ہم ہی اتنے کاہل ہیں. اس صرف کاہل ہیں اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. جو یہ ایگزامینیشن میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی اسی کے بندے ہیں, وہ یہ وہی قابل ہیں. اور اس محنت کی عادت یہاں سے ڈالنی ہے. بچوں کو آپ جیسا سکھائیں گے اس وقت وہ سیکھ جائیں گے, اس وقت وہ سیکھ جائیں گے کیونکہ یہی عمر سیکھنے کی ہے. آپ ان کو گھر پر صرف 2 گھنٹے پڑھنے کی عادت ڈالیے. آپ کی جو بھی ہے والدہ ہو والد ہو ان کی نگرانی ہے. میں پڑھانے نہیں کہہ رہی ہوں, پڑھنے کی عادت ان کی نگرانی ہے. اور ٹیوشن نہیں بھیجیں گے تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے. آپ نے ابھی ہمارا عملہ دیکھا, بہترین تربیت یافتہ اسٹاف یہاں موجود ہے. اس کے بعد کچھ نہیں سمجھے آپ 10 بار آ کے پوچھیے, کنسرن ٹیچر سے پوچھیے
क्लास टीचर से पूछिए, लेकिन घर पर सेल्फ स्टडी जो है वो लाजमी है। तो कोई एग्जाम हो, आज आपको 5th का स्कॉलरशिप कर रहा है, कल ये नीट भी होगा, कल ये JEE भी होगा, कल ये क्लैड भी होगा, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस जगह पर पहुंचे? और आप जो मंजरनामा आप देख रहे हैं मुल्क का सियासी, वो आपको कुछ सोचने को मजबूर नहीं करता? अभी जो 15 अगस्त पे आज़ादी का हमने 75वां जश्न मनाया, उसी में एक बहुत भयानक खबर आई, और उसकी पिटीशन की उस खबर को देखिए, उसकी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है वो चारों खवातीन नॉन मुस्लिम हैं। इन मुसलमानों में वो करेज, वो काबिलियत, वो हौसला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं हमारे आवाज में हमारे कॉल से हट रहे हैं, इसलिए उनमें असर नहीं हो रहा है। तो आपका बच्चा कल यूएनओ में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकता इंडिया को? कल वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बन सकता? उसको आज से आपको देना पड़ेगा तवज्जो। वो एक दिन का काम नहीं है, ये हर बरसों सींचा जा सकता है। और बच्चे जो है वो बहुत हौसला है, लेकिन इस वक्त उनकी रहनुमाई, उनकी जहन साजी सिर्फ स्कूल नहीं कर सकता। एक मतलब हैबिट हो जाएगी तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद अपने रास्ते पे चलते जाएंगे। सेकेंडरी लेवल जो होता है वो बच्चों की शख्सियत में भी और करियर में भी 5वीं से 10वीं तक का पीरियड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खुद फैसले नहीं ले सकता। तो पेरेंट्स और टीचर मिलकर उसको एक बहुत बेहतरीन करियर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ से तो जो भी चाहिए इंशाअल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हम एक ही वादा आपसे चाहते हैं कि आप 5th A और 5th B का हर बच्चा स्कॉलरशिप के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करे और सीरियसली इसकी तैयारी करे। इससे उसकी मेन स्ट्रीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पढ़ता भी है तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि यही चीज़ उसको आगे के करियर में काम आने वाली है। तो ये आप नंबर की दौड़ से बाहर निकल, ये जरा माओ को बड़ा टेंशन भी कभी कभी हो जाता है। हमारे कोलिग्स भी जो रहते हैं ना, जिनके बच्चे छोटी क्लास में हैं, तो कहते भाई एक नंबर कम हो गया तो मैं डांट देती हूँ, है ना। ये नंबर से बाहर निकल, ये नंबर अब कहीं नहीं चलते। आपके अंदर एनालिसिस, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आज IIT की कंपनीज करोड़ों रुपए के पैकेज देती है क्रिएटिविटी के लिए, आप वाकिफ होंगे, वो नंबर में काउंट नहीं होता। तो ये जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, ये उसके आगे के लिए बहुत अहम है। अगर उसके 4 नंबर कहीं कम हो गए तो फिक्र की बात नहीं, अगली मरतबा बढ़ जाएंगे। नंबर में बच्चों को मत देखिए, मैं कतई नहीं देखती। यहाँ हमारे यहाँ भी बड़ा एक ट्रेंड है 10वीं के रिजल्ट का और इसका और उसका, हम बिल्कुल नंबर में काउंट नहीं करते उनको। हर बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी में यूनिक है, अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन सलाह है। उसका इंटरेस्ट देखकर उसको सपोर्ट कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा आज से 8 या 10 साल बाद। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से, आज ही बच्चों के साथ बैठ के बात कीजिए। मैं क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैथ हम 10th को शेयर करते हैं करियर का, आसिफा के पास है, आप वो 5th को भी शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्म हमारे स्कूल ने भरे पेंडेमिक के बावजूद, और सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप भी हमारे स्कूल को मिली। और जो बच्चे को 5वीं में मिलेगी उसको 6 साल कंटिन्यू मिलेगी, वो रिन्यूअल में जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम से आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहते? क्लास टीचर मुसलसल मैसेज दे रहे होंगे, तो हर बच्चा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, और हर बच्चा ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है इसमें भी एनरोल हो। और आज से आप उस मैथ को देखिए कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा चॉइस है। आप उसको जब देखेंगे ना, मैथ में हमने पूरी डिटेल दी है, वो सबसे ज़्यादा चॉइस आर्ट्स में है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जो पढ़ते नहीं वो आर्ट्स में जाते हैं, जो कम परसेंटेज वाले वो आर्ट्स में जाते हैं। टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कॉमर्स, हमारी बच्चियाँ एक्सीलेंट परफॉर्म करती हैं
कॉमर्स में, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा की। सबसे बड़ी ताजर थी वो उस वक्त में जब इंटरनेट नहीं था, कोई इस तरह की सहूलत नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उनसे अक़्द हुआ, ये सब जानते होंगे कि पहले वो मुआविन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उनसे अक़्द हुआ तब भी उन्होंने उनको तिजारत से नहीं रोका, बल्कि उनके तिजारत के नफ़े पे इस्लाम का फ़रोग़ हुआ है। तो ये कौन बोलता है कि कॉमर्स हमारी बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती? ये रॉन्ग प्रोपगेशन जो है रिलीजन के नाम पर, मजहब ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसको हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी दानिशवर खातून है आरफा सैयदा ज़हरा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, वेस्ट में किसी चर्च की तकरीर में उन्होंने कहा था, वहाँ उनको बुलाया गया था कि आपने बाइबल का मदन बदल दिया, आपने बाइबल का टेक्स्ट बदल दिया और हमने कुरान का इंटरप्रिटेशन बदल दिया। हमारी जो असल टीचिंग है उसको हम प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस है। नमाज की अहमियत है, हम नहीं कहते, लेकिन पहला हुक्म तो इकरा का है, और उस इकरा को जब तक हमने प्रोपगेट किया, हमने दुनिया पे हुकूमत की। चाहे वो रिसर्च का कोई फील्ड हो, सितारों को देखकर सफ़र करना कोई मामूली बात थी सहरा में? कैसे लोग थे, उन्होंने कैसे अपने आप को खपाया उस इल्म को हासिल करने के लिए। आज हम आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चे को रोक नहीं सकते। सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। जिस वक्त मैं इस स्कूल में पढ़ती थी, आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। जिस वक्त मैं इस स्कूल में पढ़ती थी, हमारा स्कूल 10 से 5 था। 1 बजे खाना खाने की छुट्टी होती थी, खाना खा के वापिस आते थे। कभी क्लास टीचर को दोबारा हाजिरी नहीं लेना पड़ती थी कि सुबह 45 से तो 44 फ्री हो गए। और 10वीं जमात में सुबह 9 बजे हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती थी, और शाम में 5 से 7 मेरिट क्लास होती थी, जिसको आज जो भी आप स्कॉलरशिप समझिए। 10वीं जमात में हम सुबह 9 से शाम 7 तक स्कूल में होते थे। किसी को चक्कर नहीं आती थी, किसी को भूख नहीं लगती थी, किसी के घर से पेरेंट्स को आना नहीं पड़ता था कि बच्ची घर नहीं पहुँचे। तो ये हम कहाँ पर आ गए आज? हम कहाँ आ गए यहाँ पे आज? और ये वो तरबियत है जो आज मैं आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कि आज मैं इस CRT में खड़ी हूँ, ये वो तरबियत। आप यकीन मानिए जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद जो लंच ब्रेक हुआ वहाँ पर, जुमा का दिन था, और उसके बाद जब शाम में सेशन ख़त्म हुआ है, मेरे साथ भी अभी इस वक्त नहीं है वो असातिज़ा जो उस वक्त मेरे साथ थे, कि वहाँ से हम डायरेक्ट स्टेशन आए हैं और स्टेशन से डायरेक्ट घर आए हैं। हमने कहीं पैकेट कोई ख़रीदा नहीं, खाने पीने में कुछ नहीं, क्योंकि हमारी वैसी तरबियत हो चुकी। ठेले पे खड़े रहना, कैंटीन में बैठना, ये पढ़ने वाले लोगों की निशानी नहीं है। जो बड़े कहते थे, जो इंसान अपनी नींद और भूख पर काबू नहीं रख सकता, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम रोज़ा रखने वाले लोग हैं, है ना? हम रोज़ा रखने वाले, रोज़ा काहे की तरबियत है? इसी की है ना। तो वो जो हमारी स्कूल टाइम में तरबियत हुई, उसका हमको आज तक फायदा हो रहा है। तो ये बच्चों को आदत डालिए कि मेहनत करनी पड़ती है, जब कभी नताइज और सिले हासिल होते हैं, और होते हैं तो मेहनत करते हैं, उनको होते हैं। अभी हमारी बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो IT की फील्ड में हैं, लॉ में हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियाँ आगे नहीं जा रही हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ही उनके बारे में सोचा जाए कि इनका अगला करियर क्या होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके सजेशन को देखते हुए, तो उनको हम उसी तरह से गाइड कर सकते हैं। हम बहुत सारी नई चीज़ें इस वक्त स्कूल में चाहते हैं शुरू करना, लेकिन वो सब कुछ बच्चों